Sir, your mic. Good morning to all of you. The kind of noise that we had for good morning, no, I wish to keep that same level of energy to the end of this batch. Gradually then, morning. Fine, the chapter from where we are entering into an accounts is the chapter called an hire purchase. Now, before we start with the chapter, no, please close everything. I do not want anything in your desk. You just need to listen to me for a while. इसी में होता ना तो यहाँ पे तुम नहीं आते, तो जो है वो यहाँ पे है. So you just need to listen to me for a while and then we'll definitely need the pamphlet. So far as the pamphlet is concerned, I think Dhaval sir has discussed, we tried to show our creativity. I like to make it like a comic book so that we can feel that it's like a comic book. और एक थोड़ा पढ़ने के लिए जब मटेरियल भी हाथ में लो तो थोड़ा अच्छा लगे, खोलने का मन हो, ऑब्लिगेशन ना लगे. फिर भी कुछ नीट हैं जिसको ये भी है कि वो फर्क पड़ेगा, अंदर तो वेट लगी हुई है. I can't help in that case, but I have tried to show some sort of creativity into the materials, and I brought it across all the subjects except for DT. DT we are directly giving the reference book. PK Singhania will be given to each one of you individually. In that case, VK has done a tremendous exercise. बहुत अच्छी उसने मेहनत की हुई है ऑथर ने, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है वापस से हम क्यों करें. मटेरियल लेके आ जाते ना, आ गया तो आजा बैठ. So except that, in the rest of the subjects we will be providing this material. So far as account is concerned, what we have done is we collected the questions definitely from your module, from your workbook, from your RTP, MTP, past exam question, whatever are available, along with certain MCQs which are given in your module, as well as certain other MCQs which are asked in your past exam, along with the theoretical questions which has been repetitively asked in the respective exam, so that we can understand out of that particular chapter what kind of questions they are asking first of all. Now within that, no, आप अगर देखोगे ना, I used to have that compiled and designed by Siddharth, but I just wanted to make it a little bit more Hindi, so therefore I have translated into. मेरे को नहीं पता था compile और design का हिंदी ये होता है, मेरे को भी गूगल करना पड़ा था. हमको थोड़ा कनेक्टर है ना, मैंने भूल जाते हैं. ABCD पूछो ना, सबको पता हो गया, क्यों कक्को पूछिस ने तो नहीं आवड़े क. So basically what we done, it's not that we are so intellectual that we made our own questions. That actually is stupidity, because when I know that institute is asking from your module, from an RTP, from the workbook and past examination question, I know that, but still I don't teach them, because I want to show my creativity. I'll make the new questions. That is a stupidity, because what you will see in your exam, 70% would be from this material itself. So therefore we are focusing on that. Obviously the care has been taken that we don't miss any technical point. Whatever is required to be understood thoroughly technically, none of that point has been left out. At the same time, now since already this material is available on the portal module, what is the need of pamphlet? That again question arises के ये सारा है मॉड्यूल में, तो क्यों तुम सेव द अर्थ, क्यों तुम प्रिंट निकाल के दे रहे हो? इसलिए कि ये सारा है लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में है. आपको देखना पड़ेगा सजेस्टेड आंसर्स, उसमें ढूंढना पड़ेगा चैप्टर का क्वेश्चन, आपको देखना पड़ेगा MCQ लिए वापस से मॉड्यूल खोल के देखना पड़ेगा, आपको RTP खोल के देखना पड़ेगा, आपको वर्कबुक खोल के देखना पड़ेगा. वो सब ना करना पड़े. So therefore the logic is to bring everything at one place. And along with this, something new which again I have inserted in this material. Normally what happens, no, whether it's in costing, whether it's an account,
in any practical subject. Certain basic logic, basic accounting entries that we need to understand. And normally what happens, that is what used to happen with me, because I was so regularly irregular in the class that I know that I have written somewhere in some book, but when I want to revise a particular chapter, अकाउंट की एक डेडिकेटेड नोटबुक होती है, नहीं होती है, जनरल बुक ही होती है. बॉयज में होता ही, गर्ल्स आर शो अरेंज. आप देखो, चेक कर लो, 95% के बैग से स्केल, पेंसिल, शार्पनर, रबर, एटलीस्ट 2-3 बॉल पेन्स, बिकॉज माय फ्रेंड मे नीड एट एनी टाइम. दे आर सो ऑर्गेनाइज्ड. तो आपने कहा तू नोटबुक नहीं पानू, आपने नोटबुक तो लाए दोस्त. दैट इज फंडामेंटल डिफरेंस. हाँ, आप देखो जरा, ये देख लेना, एक ऑब्जर्व करना ये चीज. जैसे 5 लड़कियां साथ में मिलकर मूवी देखने जाती हैं, मूवी देख लिया, जिसको जो खाना था, पॉपकॉर्न, समोसा, पफ, जो खाना था वो खा लिया, बाहर आए, पार्किंग में खड़े, बोलो કેટલા થયા, ત્યાં જ વ્યવહાર થઈ જાય. અને આપણે હમણાં આપી દે ને યાર, તું પછી આપી દે. ઓલમોસ્ટ સારી વિજય માલ્યા ही है. હમણાં તું આપી દે, मतलब that future is never gonna come. मतलब આજે કોની પાસે પૈસા છે, બસ તો એની ટાલ પાડ. एक तो मारो फ्रेंड एवो હતો, બધા પાસેથી, मतलब if there's a group of 10, no, he'll come 10 રૂપિયા આપને. આવડે કંઈક અટક્યો છે, છૂટા જોતા 10 જણા પાસે 10 રૂપિયા લઈ 100 રૂપિયાનું પેટ્રોલ પૂરીને ફરવા જાય. બોલો લો, આવા બી હોય. આપણે રિક્ષામાં આવતા હોઈએ, શટલમાં, અને આપણા પૈસા આમાં ફેરવે. But the objective of giving this sort of material to you is, again, if you can open that material, please open now. You will found that different accounting treatment के लिए मैंने पैम्पलेट के अंदर इतना 1-2 पेज घुमाओगे, तुम्हें ब्लैंक पेजेस दिखेंगे, वो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है. इनिशियली मैंने ब्लॉक्स बना के भी दिए हुए हैं, that this is how, because whenever we are coming to any concept, I need to understand by way of accounting entries that what would be an exact accounting treatment for a particular type of transaction. Now rather than later on, imagine કે આ એક બાઇક વાળા પુઠ્ઠા વાળી નોટબુક હતી, એમાં કદાચ લખ્યું તું મેં, પુઠ્ઠું બી ના મળે કે ના નોટબુક મળે. અને મેઇનલી હેપન્સ નું ઇન કેસ ઓફ બોયઝ. અગેન ગર્લ્સ ને યાદ મેં નોટબુક કોને આપી, આપણી તો બુક જો કદાચ લે જ નહીં, આમ તો આપણે જ લેતા હોઈએ લખવા માટે. કદાચ જેવું થઈ ગયું કે આજે મેં સરસ લખ્યું છે, ભાઈબંધ કીધું એક મને આપતો, એટલે પછી હવે એની જવાબદારી યાદ રાખીને પાછી આપે, આપણે ભૂલી જવાનું. So that ideally should not happen. That is the reason I kept it, the conceptual part, I kept it as a part of material itself. So in all of the chapter, whenever there is any concept which I need to explain, you will see this pattern now. And I have tried to ensure that you get some good quality paper also, because this is something which will decide your future. So I decided not to have any cost cutting on that part. So आप લખો તો પછી બીજા પાના પર ના છપાય, બહુ ફાટી ના જાય, એક્ઝામ સુધી તો ચાલે. ઘણાની તમે જોયું છે બુક, 2-3 મહિના પછી એવું લાગે કે જાણે ઓહો આ લગભગ 25 વર્ષથી વાંચતો હશે, એટલી જગ્યાએથી બચારી વળી નામ થઈ ગયો. That was the reason we decided to have some good quality paper with some standardized format in which we all understand in the same way. That was an objective. प्रॉब्लम तब आता है जब आपने कुछ आपकी नोटबुक में आधो अधूरी चीजें लिखी हुई है, और फिर जब रिवीजन करने बैठते हो ना, तो क्या दिक्कत आती है मैं आपको बताऊं. सो ये प्लीज ध्यान रखना ये चीजों का. जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, ये बेसिक चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है. आपको जब भी ड्यूरिंग द लेक्चर ऐसा लगे, और ये होता है सबको, एक ही एग्जाम पे नहीं होता है, एक ही टॉपिक पे नहीं होता है,
इन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां पे आपको लगेगा यस यस दिस इज इंटरेस्टिंग, हाँ हाँ ये अब तक क्लियर नहीं था, होता है कि नहीं होता है सभी जगह पे सभी लेक्चर में, आई गॉट दिस, आई गॉट दैट थीम. You please take out 1 or 2 minutes to just write down what you thought about it, what you understood. And whenever I'm explaining something, आपको जब भी कुछ लगे कि हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, अपने वर्ड्स में मैं दूंगा थोड़ा टाइम लिखने के लिए. जैसे ये कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर लेता हूँ ना, आई नॉर्मली गिव अ टाइम के थोड़ा अपने हिसाब से समराइज कर लो, अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अब आपको जो वर्ड यूज करने हैं, बिकॉज रिवीजन आपको करना है, एग्जाम मेरी नहीं है, एग्जाम आपकी है. तो अदर देन द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग एंट्रीज व्हिच वी आर सपोज्ड टू पास, whatever conceptual clarity that you are getting, you please have an habit of writing. बाद में फिर क्या होता है, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, you will realize उस दिन सर ने कुछ इंटरेस्टिंग बात बताई थी, क्या वर्ड यूज किया था वो याद नहीं आ रहा है. अब जिसने एग्जाम दे दी, जिसने एक बार पढ़ लिया, उसको तो जो जीएसटी भी पढ़ लिया, उसको लगेगा कि सर कुछ बता रहे थे उस दिन ये पॉइंट के बारे में, अब वो क्या था वो याद नहीं आ रहा. तो हैव एन हैबिट ऑफ राइटिंग, बिकॉज एक ही सब्जेक्ट या एक ही टॉपिक नहीं है हमारे सिलेबस में, 4 सब्जेक्ट से हमें डील करना है, उसमें एक डीटी है, तो इट्स एन नेवर एंडिंग सॉर्ट ऑफ स्टोरी. तो हैव एन हैबिट ऑफ राइटिंग व्हाटएवर वी आर टीचिंग, और जब भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज मुझे समराइज करनी चाहिए. हैविंग सेड दैट, द चैप्टर फ्रॉम व्हिच वी आर एंटरिंग इनटू दिस अकाउंट, आई विल नॉट डिस्कस मच अबाउट the allocation of marks and anything. The reason being, based on the recent experience of online examination, we have observed that on the basis of feedback that we got from the student, that whatever marks which they have allotted chapter wise or a section wise, they are not following it. They are not following it. So if you try to take a risk of any particular chapter by assuming that this particular chapter has a weightage of around 5 to 7 marks, highest possibility is that they may ask about 15 to 20 marks from that chapter itself. So there is no possibility of keeping anything in option. So there is no logic of understanding in that way कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है मार्क्स के नजरिए से, वो अब कुछ मायने नहीं रखता. हाँ कुछ चीजें होंगी मैं जहां पे बोलूंगा कि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड, दे हैव नॉट आस्क्ड मच आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो उतना हम चाहें तो कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं. अब ये चीज मैं बैच स्टार्ट होने के पे नहीं बताऊंगा, बैच जब कंक्लूड होती है ना तब मैं बताता हूँ कि कुछ चीजें हैं कि आप थोड़ा उसको छोड़ दोगे तो चलेगा, थोड़ा कम करोगे उसमें से तो चलेगा, अभी नहीं. अभी तो एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हमें हर एक टॉपिक की चाहिए, ठीक है. So the chapter from where we are entering, so therefore we are not discussing about the marks weightage. Normally the weightage of marks, it is there in front of you on your screen on your first page of material itself. The trend which is available is up to December 19. After that they shifted to an online examination, then they are not disclosing the marks weightage about the chapter because they are not following it. So therefore that data is not available to me. But average, on an average, you can see that the chapter has a weightage of around 7 marks, 6 to 7 marks. So by keeping that in mind, that 6 मार्क का वेटेज तो है ही, एक भी एग्जाम ऐसी नहीं है एक्सेप्ट दिसंबर 19 के उसमें से कुछ पूछा ना हो. तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये इजी चैप्टर भी है इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट थॉरली. देखो 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जहां नॉर्मली स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट वी आर नॉट गेटिंग दिस, और ये चैप्टर ऐसे हैं जो सर छोड़े तो चलेगा. एक है ये हायर परचेस और दूसरा आएगा आपका फायर इंश्योरेंस. एंड दैट इज द रीजन वी स्टार्ट इट फर्स्ट विथ इट. वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट विद दिस 2 चैप्टर बिकॉज आई नो कि 15 दिन सुपर कंसंट्रेशन होगा आपका, और आई विल एंश्योर कि जो चैप्टर पहले स्टार्ट हो जाते हैं उसके टेस्ट भी ज्यादा रहता है. तो यू हैव एन हैबिट ऑफ डीलिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, और मेरा भी टेस्ट हो जाए कि जो सबसे डिफिकल्ट स्टूडेंट को लगता है अगर मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, सो दैट विल बूस्ट माय कॉन्फिडेंस आल्सो दैट आई एम नॉट एंटरिंग फ्रॉम एन इजी वे. अगेन द चैप्टर इज हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम.
Now understand, the first, before we enter into an accounting of it, the first and the foremost important thing is to understand what is the meaning of hire purchase. What is the meaning of hire purchase? Tell me, what is the meaning of hire purchase? Now you can close everything. Please close. पढ़ के आंसर नहीं देने का है, डिस्कशन करेंगे ना. पढ़ने के लिए तो आए यहाँ पे, तो आई डोंट एक्सपेक्ट आपको सब आता है, वरना तो यहाँ आते ही नहीं आप. But they just want your thoughts on that. According to you, what is the meaning of hire purchase? Have you heard this terminology called an hire purchase? Hire purchase word सुना है सबने? हेलो, सुना है ना? कहाँ सुना है, क्या उसका मतलब है? Anyone has any idea? 11th 12th में या बीकॉम में भी कहीं पे आया होगा ये वर्ड. क्या मतलब है हायर परचेस का? Sir, Yes, please. to buy something on rent. To buy Something on rent. something on rent. Okay, good. Sir, if we are taking an asset from someone, so we are not having the ownership of it, but we Okay. are just having the right to use that asset, but we are going to use it for a certain period of time. So that is equal to purchase. It's not like ownership is not transferred, but the right to use as an asset will be as purchase only. Therefore, Very it is like hire on purchase like that. Very good. So जब भी ना आप कोई टर्म, कोई वर्ड सुनो या पढ़ो, कुछ नहीं करना होता है. नाम क्या है? हायर. And then what is the meaning of hire? Taking it on a rent, but the mode is of purchase. Normally when I say that I have purchased this phone, that means मैं शॉप पे गया, मैंने पैसे दिए, उसने मुझे इनवॉइस दिया फोन के साथ. अब ये पूरे ट्रांजैक्शन में ना दो बहुत एसेंशियल इवेंट्स हो रही हैं. एक हो रहा है जो आज तक गुड्स उसकी पोजीशन में था, वो पोजीशन शिफ्ट हुआ मेरे पास, गुड्स का पोजीशन शिफ्ट हुआ मेरे पास, साथ में इनवॉइस मिला. दैट मीन्स ओनरशिप ऑल्सो शिफ्टेड. Ownership is not equal to always possession. Hello, I may have some property which I have given on a rent. Ownership would be mine, possession would be the person who is staying in that premises. So ownership does not always means a possession, and possession also does not always means ownership. तो यहाँ ये दोनों हैं, hire as well as purchase. Now how it is different as compared to the other installment system, or when you are buying something on a loan? Please understand, in an hire purchase there are only two parties. One, there is a seller, another, there is a buyer. Now seller want to boost his sales, but the buyer does not have money or a sufficient amount of money to buy that goods, because goods probably would be of an higher value. देखो ये बालाजी का 5 रुपए का बिस्किट खरीद, बालाजी का वेफर खरीदो या पार्ले जी का बिस्किट खरीदो, उसमें हायर परचेज नहीं होता है. वहां इंस्टॉलमेंट की जरूरत है क्या? दर महीने 1-1 रुपये वापस चाले हो. So normally this sort of arrangements will come in case where the goods are of an higher value. Goods are of a higher value. Therefore, the seller, as a part of his marketing strategy to boost up his sales, is coming up with this sort of scheme that you please come, you don't have money, no issue, you take the possession of the goods, you pay me in an installment. Now obviously
when they are saying that okay fine, you don't have money, you come, you pay me in an installment, तो कैश में तो कोई खरीदेगा ही नहीं फिर। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि आप आ जाओ, आप कुछ अमाउंट का मुझे डाउन पेमेंट दो, बाद बैलेंस अमाउंट यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट, balance amount you can pay in an installment. For example, if the price of the goods is 55,000, you pay me 5,000 as a down payment, the balance amount you can pay in an installment 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. You got it? तो जो बंदा कैश में खरीदने आ रहा है वो पागल तो नहीं है, वो आके सीधा सेलर से बार्गेन करेगा। देखो भाई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो मैंने भी पढ़ा है और उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो भी मुझको पता है। When you are selling your goods on a higher purchase basis, you will get your money after 5 years, over a period of 5 years. I am coming in your shop, want to buy right now, so time value of money is 0 in my case. Today, P0. So obviously, I'll not pay the same amount which the higher purchase buyer is paying, because I'm paying you the full money right now. चलो, इससे मेरे को एक ना स्कीम अनाउंस करने का मन हो गया अपने लिए भी। This is not a joke. This is an actual announcement. The first week is a demo for all. Demo for all. I think today is 12th, no? If any of you, no restriction on the number, all of you are paying, I have no issues. Any one of you is paying at least 5,000 rupees by 14th. Only 5,000 rupees by 14th. You will get a discount of 10%. तो अगर दोनों केस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे भी आएगा। अगर कोई बंदा 100% फीस भी पे कर रहा है ना, तो उसको भी 10% ऑफ, एटलीस्ट 5,000 यू गॉट। ये एग्जांपल नहीं है, ये एक्चुअल स्कीम में बोल दिया। तो एनी ऑफ यू वांट टू हैव दैट बेनिफिट, नो, यू कैन हैव दैट 5,000 बाय 12th, बाय 14th, नॉट 12th। आप तो नहीं लिखे हैं, मेरे को पता है। So by 14th, if you are paying, you will have so next installment then you are supposed to pay in the first week of August. Fine with that? 10% off. Early bird discount बोलते हैं ना, तो ये early bird हो गया। मतलब मेरे बंदे हैं जिसको, जो पहली बार शायद नहीं पढ़ रहे मेरे पास, जो पहली बार मेरे पास पढ़ रहे हैं, उनको लगेगा कि डेमो मेरे को देखना चाहिए। अब जो है मेरे लॉयल बच्चे, उनको तो चलो मिल जाएगा ये डिस्काउंट। बाकी सबको भी आई थिंक एक दिन में पता चल जाता है ना। मतलब लड़का लड़की देखने जाए तो हफ्ते का डेमो नहीं होता है भाई, वो पहले 10 मिनट में भी पता चल जाता है कि नहीं मेरे पड़ा क्या मैंने बहु गमे से 10 मिनट में खबर पड़ी जाए। घना केस में वो पण થાય કે આમ દેખાવમાં બરાબર લાગે, બોલે એટલે પૈસા પડી જાય. That also happens. But I think we all have spoken a lot. Still, there is a lecture of Divyesh sir, but Divyesh sir को आपने सुन लिया है, so you heard him in this orientation session, so I don't have any doubt. So that was the reason we announced that scheme. And again, coming back to hire purchase. In case of hire purchase, what we were discussing is, अगर मैं किसी भी बिजनेस के बारे में सोचूं, अकाउंटिंग में हमेशा ना बाद में आने का, किसी भी कॉन्सेप्ट के पहले बिजनेस मॉडल को समझना, क्योंकि अकाउंटिंग उसी हिसाब से होता है, बिजनेस मॉडल के हिसाब से होता है. अगर किसी भी बिजनेस के बारे में मैं सोचूं, अगर किसी भी ट्रेडर के बारे में मैं सोचूं, तो क्या होते हैं उसके अलग अलग एलिमेंट्स. एक तो होता है उसकी कॉस्ट, उसने गुड्स खरीदे, उसकी कॉस्ट, उसमें उसने ऐड किया है प्रॉफिट, दैट बिकम्स अ सेलिंग प्राइस. बट दिस सेलिंग प्राइस कौन सी है? ये सेलिंग प्राइस जो प्राइस पे वो गुड्स बेचेगा. मतलब कोई आया जिसने 50,000 रुपए दिए, आईफोन लेके गया,
ठीक है, हायर परचेस प्राइस में एक और एलिमेंट भी जुड़ता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिकॉज द पेमेंट इज स्प्रेडेड ओवर नंबर ऑफ years. So therefore the cash selling price and the higher purchase price are not same, because in case of an higher purchase price there is an element of interest which is included in it. So if I want to make an equation, it would be cost plus profit is equal to selling price, or you can say cash price plus interest is equal to your higher purchase price. Am I clear with this? वापस से, cost plus profit is equal to your cash price plus interest is equal to your higher purchase price. तो ये जो इंस्टॉलमेंट पे हुए 10,000 के, that actually is a higher purchase price. Now whenever we are reading a question, the first and foremost important thing that you need to highlight, understand would be what price has been given to us. Is it a cash price that has been given to us, or is it a higher purchase price that has been given to us? अब यहां थोड़ी जल्दबाजी करने जाओगे ना तो पूरा सिस्टम फेल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. हायर परचेस क्यों है? क्योंकि ट्रेडर वो वाले गुड्स में डील कर रहा है जिसकी प्राइस ज्यादा है. सो नॉर्मली इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, आई विल से machinery, capital goods, the value of which is higher, not normal DMart वाले goods. हेलो, जिसकी वैल्यू थोड़ी हायर है तो he want to boost up his sales, so therefore he is coming up with this sort of scheme that okay fine, you can pay in an installment. And when he is coming up with this sort of scheme, obviously my accounting treatment which I used to make for both seller as well as for buyer, दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज होगी. दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज होगी. कैसे और क्यों जरा समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अकाउंटिंग का. So far as accounting is concerned, we know that the Institute of Chartered Accountants of India has issued certain accounting standards for it. This is all relevant, that's why I'm discussing this. Institute of Chartered Accountants of India has given certain accounting standards which the entity is required to follow. The first question arises that what is the need of this accounting standard? Accounting standards की जरूरत ही क्या है? क्यों हमें चाहिए accounting standard? Accounting standard इसलिए चाहिए so that हर एक बंदा अपने हिसाब से किसी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग ना करे, स्टैंडर्डाइज हो. किसी भी ट्रीटमेंट के लिए या किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, फॉर एनी इवेंट which is occurring in the business which can be converted into money, monetary concept, any event, any transaction which can be converted into money, that should be recorded in the books of accounts. Anything which can be converted into money. So if employee is coming and employee is going, no, that we are not recording. The loyalty of an employee is not recorded in the books of account because we are not able to convert it into the money. But all the rest of the transactions which can be converted into money are recorded in the books of account. So for someone, something might be capital goods, for someone
this might be an expenditure. So therefore, accounting standards are required. Just take an example. Panna galla wala mate ek fan might be a capital goods. Panna galla wala mate. Reliance ni andar e pankho lage 2000 rupiya no. For them it is an expenditure. They do not capitalize in the books of account. Who will maintain fixed asset register for this? Are you getting what I'm saying? Therefore, we have materiality concept also. You see what is material to you, how much it is material to you. Now, people do not vary a lot. By keeping that in mind, accounting standards were issued. ध्यान से सुनिए, ये बहुत important है. अब क्योंकि मैंने बोला कि हायर परचेज कौन से ट्रांजैक्शन में आता है, कौन से बिजनेस मॉडल में आता है, कहां पे आता है? जहां पे the value of goods is higher. That means normally in case of capital goods. Normally in case of, that means the buyer, for a buyer, this is not raw material. अब raw material वो हायर परचेज पे खरीदेगा, पागल हो जाएगा ना वो तो. रॉ मटेरियल कभी कोई हायर परचेज पे खरीदेगा क्या? अब समझ रहे हो बिजनेस मॉडल? जरा समझो, सारे अकाउंटिंग का आंसर तभी मिल जाएगा हमें. तो जो बायर है उसके लिए वो हर बार क्या रहता है? असेट, not a raw material, because the value of goods would be higher. For seller it is a sales. We need to understand the accounting treatment in the books of both higher purchaser, higher vendor. दोनों के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो हमें समझना है, by keeping in mind what accounting standards. ध्यान से सुनिए. So far as seller is concerned, for him this is a revenue. So far as buyer is concerned, for him this is a asset. Are you getting what I'm saying? We'll come one by one. ये आज ओवरव्यू ही मुझको देना है चैप्टर का. ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आ जाएगी, फिर मेरे को सिर्फ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को लाना है. तो जरा ध्यान से समझो. अगर मैं बात कर रहा हूं सेलर की, उसके लिए क्या है? ये रेवेन्यू है. तो मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन. That when can I recognize the revenue? बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत फंडामेंटल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Normally this sort of things are assumed to be known to an intermediate student, but I know everyone is not coming from the same background, so therefore I am coming to your level. और ये हर बार नहीं आऊंगा मैं, एक दो बार मैं आ रहा हूँ चैप्टर स्टार्टिंग के टाइम पे. तो जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, एकदम अच्छे से चीज को समझ लेना. बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट सेलर. तो सेलर की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगा उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा AS9, विच इज अ रेवेन्यू रिकॉग्निशन. ये रेवेन्यू आपको कब रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, बहुत अच्छे लॉजिक से ही जाना. कोई रट्टा आता है, मेरे को तो याद ही नहीं रहता रट्टा मारना, तो मैं कभी वो सिखा भी नहीं सकता हूँ, मेरे को कभी याद नहीं रहता. आप मुझे बोलो प्रेजेंटेशन देना है, तो प्रेजेंटेशन अगर है और मेरे को उसी हिसाब से बोलना है ना, तो आई कैन नॉट टीच. जो लॉजिक से फ्लो में आता है ना वही. तो हर एक बार जो चैप्टर में पढ़ाता हूँ, हर बार कुछ नए एंगल से स्टार्ट होता है. डिपेंड करता है सामने वाले पे, डिपेंड करता है थॉट प्रोसेस में, चेन में अब क्या अच्छे से आना चाहिए. सेम नहीं रहता है हर बार. तो आप भी थीम को समझना, ना कि रट्टा नहीं मारना है हमें. हमारे पास दो लोग हैं. So when I talk about an accounting treatment in case of an higher purchase, it is not restricted for seller only. It is for seller as well as for the buyer, and both are on the other side of the table to the each other. So for one which is a revenue, for another it is a capital expenditure. So for seller, my question would be, whenever I want to pass an accounting entry, my question would be, what is my revenue? How much revenue I can recognize?
that question will arise. And that was the reason why I have explained that equation to you. Cost plus profit is equal to cash selling price plus interest is equal to your higher purchase. ये equation बहुत key role play करेगा in accounting. That was the reason why I explained you that equation. When it comes to recognizing a revenue, accounting standard says that whenever there is a reasonable amount of surety to get the money, ownership possession has been shifted, at that point in a time you can recognize the revenue. First thing, accounting standard. Accounting in our books of accounts are done on the basis of an accrual concept. Accrual word सुना है? तो पूछूंगा मतलब डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि ये अगर नहीं पता है तो अकाउंटिंग में आ ही नहीं सकते, किसी भी चैप्टर में जा ही नहीं सकते, क्योंकि माय ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस. 3 टर्मिनोलॉजी हैं इसके रिलेटेड जो आपने सुनी होगी, अक्रूड, ड्यू एंड रिसीव्ड और पेड कैश. 3 है ना, अक्रू, ड्यू एंड received. मतलब कैश मतलब whenever it comes in my account or goes out of my account, that is actual hit. But my accounting, if I'm not maintaining my books of account on cash basis, you can also maintain your books of account on cash basis, but if I'm not maintaining my books of account on cash basis, then I'm maintaining my books of account on an accrual basis. Cash basis पे permissible भी नहीं है अभी. So if I'm maintaining my books of account on accrual basis, then it is very important for me कि किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कब करें. अगर किसी ट्रांजैक्शन को मैं मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन कब? जब मुझे पता चले, जब मेरे अकाउंट में पैसा आए, कब मैं किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करूं. सो माय क्वेश्चन टू यू ऑल वुड बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्रूड एंड ड्यू? व्हाट इज द डिफरेंस? यू कैन गिव विथ एन एग्जांपल आल्सो, आई हैव नो इश्यूज. अगर नहीं पता है तो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, क्योंकि सबको तो नहीं पता है. सुना है ये टर्मिनोलॉजी, ड्यू वाला भी सुना है. ये तो पता ही है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में आर मेंटेनिंग ऑन एन अक्रूवल बेसिस, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्रूड एंड ड्यू? कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अक्रू एंड ड्यू? क्योंकि अकाउंट मैनेजर के लिए ना ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है. अक्रू और ड्यू में क्या डिफरेंस है? एनीवन हैज एनी आइडिया? एनी थॉट? 11th से हम पढ़ रहे हैं अकाउंट. Accrual means on credit. And due means? Now this is what, see what we are now learning. I want you to understand this. This is what a difference between the professional students and just BCom or MCom students. This is a difference. This is the basic which we never give an importance, जो हम एकदम क्लिस्टर क्लियर रखते हैं. एंट्री कभी रट्टा नहीं मारते हैं. I'll give an example and then you will understand it thoroughly. Listen to me very carefully. ये एग्जांपल से आपको अक्रूड, ड्यू, कैश तीनों मिलेंगे. Take an example that your father wants to park and fix deposit in the bank. So आप अपने फादर के साथ बैंक में गए, बैंक मैनेजर से मिले, आपने बोला I want to park an FD for let's say 10 lakh rupees. उन्होंने बोला कितने टेन्योर के लिए?
तो हमने पूछा कि भाई बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बिकॉज वी डोंट नीड दिस मनी इन नियर फ्यूचर। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए गए। ऑब्वियसली जितना टेन्योर बड़ा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ज्यादा होता है नॉर्मली। तो हमने देखा कि भाई 5 साल के लिए अगर हम एफडी करेंगे ना तो वी आर गेटिंग मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5 साल के लिए अगर हम एफडी करते हैं तो हमें मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ध्यान से सुनना ये। तो हमने बोला हमें एफडी करनी है 5 साल के लिए। मैनेजर का दूसरा क्वेश्चन होगा कि आपको इंटरेस्ट क्वार्टरली चाहिए, बिकॉज हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं क्वार्टरली, या वो इंटरेस्ट को भी आपको री इन्वेस्ट करना है। हम बोला नहीं पैसे की जरूरत नहीं है, वो इंटरेस्ट अमाउंट कुछ बड़ी नहीं होगी। यू डू वन थिंग, rather than paying us, you please add it in the value of FD. Cumulative interest, you know that, no? Now, please try to understand in this transaction. You parked an FD on 1st of April for simplicity. आपका पहला इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा? 30th of June. रियलाइज नहीं होने वाला है वो कभी। रियलाइज वो कब होगा? 5 साल के बाद। रियलाइज वो कब होगा? 5 साल के बाद। लेकिन पहले साल जब तुम अकाउंटिंग एंट्री करोगे तो तुम्हें ये 1 साल का इंटरेस्ट यू हैव टू ऑफर इट एज एन इनकम और नॉट? हैव टू ऑफर एज ए इनकम और नॉट? यस, दिस इज योर अक्रूवल। ये अभी तक ड्यू नहीं हुआ है आपके लिए। ड्यू भी कब होगा? 5 साल के बाद। पेमेंट के लिए ड्यू कब होगा? वो 5 साल के बाद। और बार ऐसा भी होता है एफडी पार्क की थी आपने, आप खुद भूल चुके हो क्या मैच्योरिटी का डेट था उसका, ठीक है, तो आपने अकाउंटिंग नहीं किया होता है। ड्यू जिस दिन हुई उस दिन उन्होंने पेमेंट भी कर दिया। तो नॉर्मली बैंक का एग्जांपल इसलिए ड्यू और पेड का डेट सेम रहता है, वरना उसमें भी डिफरेंस हो सकता है, उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो नाउ बाय कीपिंग दिस इन माइंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही एग्जांपल में क्या तुमने पहले ही साल 5 साल का इंटरेस्ट एज ए इनकम ऑफर कर दिया? पहले साल 5 साल का इंटरेस्ट तुमने ऑफर कर दिया क्या? नहीं किया ना। हम क्या करेंगे, 5 साल में जितना जितना इंटरेस्ट बैंक हमें सर्टिफिकेट देगा इतना इंटरेस्ट आपका अक्रू हुआ, उस हिसाब से हर एक साल का इंटरेस्ट हम रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करेंगे। दोनों चीज गलत होती अगर मैं पहले ही साल पूरी इनकम ऑफर कर देता या 5th ईयर में पूरी इंटरेस्ट इनकम ऑफर कर देता। दोनों ही गलत अकाउंटिंग एंट्री होती, बिकॉज इट इज नॉट बिलोंगिंग ईदर टू द फर्स्ट ईयर नॉर टू द लास्ट ईयर, इट इज spreaded over a period. You got what I'm trying to say? Bring that concept to the seller who is selling his goods on an hire purchase basis. Bring that concept. I hope you got an answer now. That if my cash selling price, for example, is a 50,000 rupees and my hire purchase price is a 60,000 rupees, what is the gap? 10,000. ये क्या है? Time value of money, interest. Can I recognize 60,000 as my sales in the first year? No. Why? ये हर साल इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, तो 2,000 रुपए का इंटरेस्ट आई नीड टू ऑफर एज ए इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, बिकॉज इट डज नॉट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट ईयर नॉर इट बिलोंग्स टू द 5th ईयर। मैं एक्सप्लेन करूंगा लिख के भी, अब जरा पहले सुन लो, क्योंकि लिखने के चक्कर में ना कॉन्सेप्ट टूट जाएगा। वापस इक्वेशन पे आते हैं, ध्यान से समझो। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू योर, अंडरस्टूड? हमारा सेल्स हम कौन सी वैल्यू पे ऑफर करेंगे बताओ अभी मुझे? कैश प्राइस पे या इंस्टॉलमेंट हायर परचेज प्राइस पे? सेल्स कौन से अमाउंट पे ऑफर करेंगे? कैश प्राइस। समझ में आया?
उस साल का जो इंटरेस्ट होगा तो हमारी एंट्री क्या होगी, क्योंकि ये क्रेडिट सेल ही है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, राइट टू रिसीव आई हैव टू क्रिएट इन फ्यूचर टू हायर परचेज सेल्स 50,000 50,000. Interest as per accounting standard 9 should be recognized when it got accrued. Interest अब तक accrue नहीं हुआ है, हम recognize नहीं कर सकते हैं. तो पहला 2000 हम कब recognize करेंगे, साल खत्म होने पे, जब वो मुझे पहला इंस्टॉलमेंट देगा. वो देगा कि नहीं देगा, जिस दिन उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा पेमेंट के लिए, उस दिन मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा कि अब मुझे आपसे इंटरेस्ट भी खरीदना है, सॉरी इंटरेस्ट भी कलेक्ट करना है. Am I clear on this? Sure. ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है. ये हुआ तुम्हारा सेलर, ये हुआ आपका सेलर. क्या हमने कंक्लूड किया फंडामेंटल, कि किसी भी हायर परचेज ट्रांजैक्शन में क्वेश्चन ने हमें अगर इंफॉर्मेशन दी है तो हमें सबसे पहले जो करना होगा वो होगा स्प्लिट करना होगा. व्हाट इज द कैश एलिमेंट, व्हाट इज द इंटरेस्ट एलिमेंट, व्हाट इज एन इंस्टॉलमेंट अमाउंट. दैट मींस हायर परचेज प्राइस. जब तक तुम ये नहीं करते आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते. Am I clear with this? That is the reason our initial few questions are purely an exercise relating to how to split based on the information which has been given in the question. Multiple type of information might be given. All information has been given to us. It would be easy for us to find out what is the cash element, what is the interest element, what is an higher purchase price element. अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें जानबूझ के नहीं दी है, फिर भी हम किस तरीके से ये पूरे इंस्टॉलमेंट वाला जो हायर परचेज वाला जो ट्रांजैक्शन है उसमें से कैश एलिमेंट, इंटरेस्ट एलिमेंट, हायर परचेज प्राइस को स्प्लिट कर पाए. क्योंकि ये जब तक हम नहीं करेंगे बीइंग अ सेलर, जब तक हम ये नहीं करेंगे हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते. Am I clear with this? अब जरा एक और चीज सुन लो बिफोर आई गो टू द बायर इन द बुक्स ऑफ बायर. आप जब क्रोमा में जाते हो आपको टेलीविजन, लैपटॉप, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज पे आपको बोलेंगे इंटरेस्ट फ्री ईएमआई खरीद के जाओ. क्रोमा वाला बंदा ही सब अरेंजमेंट करेगा. दिस इज नॉट हायर परचेस, बिकॉज ये जो आपको इंस्टॉलमेंट दे रहा है ना, ये क्रोमा नहीं दे रहा है, ये दे रहा है बजाज फाइनेंस. हेलो, हायर परचेज ट्रांजैक्शन में सिर्फ दो लोग होते हैं. एक होता है सेलर, दूसरा होता है बायर. लोन ट्रांजैक्शन में तीन लोग होते हैं, बायर, सेलर एंड बैंक. लेंडर आई से द वन हु लैंड द मनी. तो ट्रांजैक्शन अगर हम क्रोमा वाला समझे तो क्रोमा वाला ट्रांजैक्शन होता कैसे है. आप क्रोमा में गए, आपने टेलीविजन सेलेक्ट किया, आपने बोला मुझे ईएमआई से पेमेंट करना है, बोला ठीक है कर देते हैं. वो आपके नेसेसरी इंफॉर्मेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट आपने दिया उसको, बेसिक डिटेल, उसके बेस पे उसने आपका सिबिल स्कोर देख लिया. They communicated this detail to Bajaj Finance. Bajaj Finance said that okay, fine, they have good credit score and good amount of repaying capacity. Fine, we approve this. उसके बाद हम टेलीविजन घर पे लेके आ जाते हैं. क्रोमा को पैसे हम नहीं देते हैं, क्रोमा को पैसे कौन देता है, बजाज फाइनेंस. हम जो बाद में पेमेंट करते हैं वो क्रोमा को नहीं करते, हम किसे करते हैं. नाउ इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन बजाज फाइनेंस एंड क्रोमा कि भाई आप मेरे क्लाइंट को
बजाज फाइनेंस ने बोला आप मेरे क्लाइंट को उतना डिस्काउंट दोगे जितना मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ। अब उससे क्रोमा को क्या फायदा, सेल्स बूस्ट होगा। हेलो, जैसे ये अर्ली बर्ड वाला मैंने बोला ना, सेल्स बूस्ट होगा कि भाई आओ चलो, आपको कैश में खरीदना है तो भी ये प्राइस, इस पे खरीदना है तो भी ये प्राइस। आर यू गेटिंग? सो इन दिस लोन अरेंजमेंट देयर आर 3 parties which are involved: buyer, seller and the lender. But in case of an hire purchase transaction, there are only 2 parties. सेकेंड ट्रांजैक्शन में अगर मैं पैसा बजाज फाइनेंस को पे नहीं करता हूं, क्रोमा को क्या लेना देना उससे, कि क्रोमा को तो पहले ही दिन पूरा पैसा बजाज फाइनेंस को दे दिया। ये भी डिफरेंस है ना। क्रोमा को बाद में अगर मैंने पेमेंट नहीं किया, सॉरी बजाज फाइनेंस को बाद में अगर मैंने पेमेंट नहीं किया, क्रोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी। क्यों? उसको तो पैसा मिल चुका है। तो अगर कोई केस कर सकता है तो वो है बजाज फाइनेंस। ध्यान से सुना, मैंने वर्ड यूज किया है, केस कर सकता है। ही कैन फाइल सूट अगेंस्ट अस, ही डू नॉट हैव अ राइट टू गेट द गुड्स बैक। ही कैन फाइल सूट ओनली फॉर रिकवरी। हेलो, डायरेक्ट आके वो गुड्स नहीं ले सकते हैं, वो केस डालेंगे और बाय वे ऑफ कोर्ट जजमेंट इट मे कम्स कि भाई इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें से पैसा दो, स्पेसिफिक गुड्स नहीं। और अगर वो अनसिक्योर्ड लोन है तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ एन हायर परचेस ट्रांजैक्शन, अगर सेलर भाई साहब को पता चले कि बायर ने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, जब मन चाहे उसके घर पे जाके वो टेलीविजन निकाल के वापस लेके आएगा, कुछ कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ राइट गिवन टू द सेलर by way of hire purchase agreement itself, by way of hire purchase agreement itself। दोनों ने साइन की होगी ना उसके एग्रीमेंट पे, अगर तूने पे नहीं किया ना तो मैं आके लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हायर परचेज में सिर्फ पोजीशन दिया है उसको, ओनरशिप अभी भी सेलर की ही है। ओनरशिप विल बी शिफ्टेड ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। दैट इज आल्सो अग्रीड एज अ पार्ट ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, कि जब मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तब ओनरशिप शिफ्ट हो जाएगी मेरे पे। ये पहले आज से 10 साल पहले ये कॉन्सेप्ट अच्छा चल रहा था मार्केट में, हायर परचेज सेल्स हो रहा। आज के दिन में आपको कहीं नहीं दिखेगा। क्यों? बिकॉज सेलर डू नॉट वांट दिस सॉर्ट ऑफ इश्यूज एंड लिटिगेशन ऑफ मेसिंग अप विद देयर कस्टमर्स। होता क्या है इस केस में, अगर उसे पैसा नहीं दिया तो तुम्हें बीइंग अ सेलर कस्टमर से ही रिलेशन बिगाड़ने, अपने लेके आना है, इश्यू क्रिएट करना है। तो उससे बेटर कि सेलर बोले क्यों हम हेडेक करें। एंड द बैंकिंग सेक्टर एंड NBFC सेक्टर ऑफ आवर कंट्री वेर डेवलपिंग इन दैट फेज, दे कम अप विद दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन। बजाज फाइनेंस देखो आज, बजाज फिनसर्व देखो आज, दे वेर डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ एन प्रोडक्ट। तो फिर सेलर को क्यों हेडेक करना है? बिकॉज अगर मैं ट्रेडर हूं, जरा ध्यान से समझना, अगर मैं एयर कंडीशन का ट्रेडर हूं तो आई हैव अ स्किल ऑफ अर्निंग फ्रॉम एन एयर कंडीशन सेलिंग, नॉट फ्रॉम इंटरेस्ट। हेलो, मेरा प्राइमरी बिजनेस मनी लेंडिंग नहीं है। आई हैव अ स्किल टू बाय एंड सेल एयर कंडीशन, कि कब मुझे खरीदने चाहिए, कब मुझे बेचना चाहिए, कौन सी प्राइस मुझे बेचना चाहिए, वहां मेरी स्किल है, ना कि मनी लैंड करना। वो मेरा बिजनेस ही नहीं है। सो देयरफॉर this concept of hire purchase has not become that much effective in our country. Why? Because of NBFC's aggressive product relating to this kind of goods. और सेलर को भी हेडेक नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी as a part of our accounting treatment we need to understand कि hire purchase में there are only 2%, loan transaction में there are 3%, hire purchase में the ownership has been not shifted until the payment of last installment. In case of loan transaction, the ownership possession both has been shifted on the very first day.
then you mess with Bajaj Finance. Am I clear with this? Sure. Now we are coming to the books of buyer. What buyer will do? देखो वापस से कैश प्राइस थी 50,000, हायर परचेस प्राइस थी हमारी 60,000. मेरे को बताओ आंसर इसका कि अगर मैं बायर हूं, मैंने गुड्स खरीदा हायर वेंडर से, हायर परचेस प्राइस है उसकी 60,000, कैश प्राइस है 50,000. क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने खरीदा ये हायर परचेस एग्रीमेंट के जरिए. मेरी बुक्स में मैं एसेट कौन सी वैल्यू से दिखाऊंगा, 50,000 या 60,000? What is your name? Isha. 50 or 60? 60. Are loud? We are in the country where there are 130 crores. So if you are not loud and clear, no one is going to listen to you. Ah, beta. 60. 60. 60. Wow, wow, wow. Sir, 50,000. अरे भाई ऊपर है. જોઈ તમે છોકરીઓની યુનિટી. Yes. 50. So I want change. 50. 60. બાજુમાં જ માથાકૂટ યાર. Yes. 50 or 60? 60. 50. 60. Oh. 50,000 वाला तो कांग्रेस जेवा છે બેટા. જબર. भाई वो कारण पूछिस, reason I'll ask. To be clear, you can say that I'm not sure. That is also an answer. Last bench, Maroon sir, 60. શું નામ છે તમારું? લાઈન માં બોલતા જ જાઓ ભાઈ, એક એક ને પૂછું તો જ બોલે એવું નથી. चलो 60, please raise your hand. Let's save the time. Those who are feeling that it should be 60,000. Those who are raising hand, 50,000. બંનેમાંથી એક કઈ નહીં. આમ આદમી પાર્ટી. Understand? So far as those who are saying 60,000, they are believing that since I am paying 60,000, my asset should be also capitalized in the books of account with 60,000. So those who are saying 60,000, what they have done, they have capitalized this interest of 10,000 also in the value of asset. Am I right? Yes. That is the case. But for that you need to understand the concept of capitalization. Accounting standard 10, valuation of fixed asset
the value which you can show in your books of account. Accounting standard is saying that you should capitalize all expenditure in the value of asset up to the date of ready to use, not put to use. Up to the date of put to use से depreciation start होता है, capitalization नहीं. Depreciation आपका कौन से दिन से start होता है? From the date of put to use, not ready to use. Depreciation आप कौन से दिन से अप्लाई करोगे? जिस दिन आप मशीन लाके रख दिया उस दिन से, या यूज करना स्टार्ट करोगे उस दिन से? तो your depreciation will start from the date of put to use, but expenditure you can capitalize. Just a second. Urgent lecture में. हाँ बंद. हाँ. Again, what we are saying is, if you are capitalizing any expenditure, that expenditure you can capitalize up to the date of ready to use, not put to use. तो जब एयर कंडीशन आप खरीदने जाते हो तो वो रेडी टू यूज कंडीशन में है जिस दिन तुमने खरीदा कि नहीं है? अरे पागल हो क्या? एयर कंडीशन में खरीद जाओ तो उसमें कुछ बाकी है क्या? वो तो पुट टू यूज किया ना, फैन लगाना तो पड़ेगा ना यार, कम ऑन. अभी लाइट हाथ में लेके थोड़ी घूमूंगा मैं. It's its functionality that I need to fix it on a wall. It is ready to use or not. તમે ડીમાર્ટ માંથી ટ્યુબલાઇટ આવો તો ચેક કરીને આપે છે ને ભાઈ, પછી હાથમાં લઈને થોડી ફરી આપણે. हेलो, अब बताओ इंटरेस्ट रेडी टू यूज बाद है या रेडी टू यूज से पहले है? इंटरेस्ट कब आ रहा है? होगा कैपिटलाइज. तो और एट विच वैल्यू यू विल कैपिटलाइज योर एसेट? अब लॉजिक सुनो इसका. ये तो हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंटरप्रिटेशन कि वो क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर यू कैन कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अप टू डेट ऑफ रेडी टू यूज. नॉट लॉजिकल है. क्यों लॉजिकल है? क्योंकि समझो ये एयर कंडीशन, ये वाला एयर कंडीशन में कैश में लेके आया, बैलेंस शीट में इसके वैल्यू 50,000. वो एयर कंडीशन में हायर परचेस पे लेके आ गया, वैल्यूएशन हुआ क्या उससे? कुछ 60,000 में. 10,000 का गुड्स में कुछ वैल्यूएशन हुआ तो कहां यूनिफॉर्मिटी हुई? जस्ट बिकॉज कोई बंदा जल्दी पे कर रहा है, कोई बंदा लेट पे कर रहा है, उससे एसेट की वैल्यू कैसे बढ़ गई? क्या वैल्यूएशन किया इंटरेस्ट ने? तो तुम कैसे 10,000 ऐड कर सकते हो? समझ में आ रही है ना बात? आर यू श्योर? इसके साथ एक और एक्सप्लेन करता हूं कॉन्सेप्ट. ये आया होगा पढ़ने में, ये तो आया ही होगा, विच इज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज. समझना, ये भी इसके रिलेवेंट, इसके जैसा है. यहां पे हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, AS 10 में हम एसेट का वैल्यूएशन करते हैं. इसलिए मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं. अगर ये मोबाइल फोन आज मैंने बनाया, आज ही बिक गया, और दूसरा मोबाइल फोन आज मैंने बनाया, 3 महीने तक ये वेयरहाउस में पड़ा रहा, वैल्यू बढ़ेगी इससे उसकी? क्यों? मैंने उस पर वेयरहाउस रेंट पे किया है, तो क्या मैं उसको इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर ऐड कर दूं? नहीं कर सकता ना, क्योंकि उससे उसका कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है. अब हर एक बंदा, ध्यान से समझना, हर एक बंदा ऐसा करने लगेगा अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, तो तुम कैसे कंपेयर कर पाओगे दो बिजनेसेस को? क्योंकि एक बंदे के गुड्स वेयरहाउस में पड़े रहते हैं, दूसरे बंदे के गुड्स वेयरहाउस में नहीं पड़े रहते हैं, क्लियर हो जाते हैं. तो जिसके वेयरहाउस में पड़े रहते हैं उसकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन वुड बी हायर एज कंपेयर टू जिसके नहीं पड़े रहते हैं. यूनिफॉर्मिटी कहां हुई? योर इन्वेंटरीज आर बीइंग वैल्यूड कब तक? वेयरहाउस में पहुंचने तक, खर्चे तक, क्योंकि वो सबको करना पड़ेगा. खरीद के, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस का खर्चा करके अपने प्रीमाइसेस तक लाने का खर्चा सबको करना पड़ेगा. सो ऑल एक्सपेंडिचर अप टू ब्रिंगिंग दोस गुड्स टू योर प्रीमाइसेस इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी. आफ्टर व्हाटएवर यू आर स्पेंडिंग इज नॉट रेलेवेंट. दैट इज योर इनकैपेबिलिटी
and your incapability of not being sold, you are not able to sell your goods, will not increase the value of goods. समझ में आ रही है ना बात मैं जो बता रहा हूं? वैसे ही तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम हायर परचेज में गए, उससे एसी की वैल्यू बढ़ती है क्या? Am I clear on this? तो प्रिंसिपल अगर हम जाएं तो प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? All expenditure up to date of ready to use only should be capitalized in the books of account. So meaning thereby again, अगर मुझे एक नया प्लांट खड़ा करना है, ये देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आ गया ऑलमोस्ट, अगर मुझे नया प्लांट खड़ा करना है, उसके लिए मैंने बैंक से लोन लिया है, अब वो लोन चलने वाला है 10 साल, उसमें से पहले 2 साल में प्लांट खड़ा होकर रेडी हो गया, तो पहले 2 साल का इंटरेस्ट विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ प्लांट, कैपिटलाइज। जिस दिन प्लांट का इंजीनियर ने सर्टिफिकेट दे दिया इट्स नाउ रेडी, उसके बाद जितना भी इंटरेस्ट मैं पे करूंगा दैट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड इन द वैल्यू ऑफ प्लांट, दैट इज माय एक्सपेंडिचर डायरेक्टली। एम आई क्लियर विद दिस? श्योर? दैट इज हाउ द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऐसे नहीं होते कि आओ हो तो आओ करवाना, we need to understand the principle that we need to follow. What seller is required to do, what buyer is required to do, keeping in mind the accounting standards, what accounting standards are saying about it. Am I clear on this? अब इसमें आएगा कि अगर buyer default करता है तो क्योंकि seller के पास right है goods को repossess करने का, तो full repossession भी हो सकता है, एक मशीन था वापस लेके आ गया, ऐसे भी हो सकता है वो 5 ट्रक खरीद के गया था उसमें से 2 लेके आ गया। इन दैट केसेस व्हाटएवर ही हैज पेड एज एन इंस्टॉलमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ रेंट। हेलो, पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, दूसरा पे नहीं किया, तो पहला वाला विल बी ट्रीटेड एज, सेलर बोलेगा वो भी रेंट में गिना जाए, गुड्स में लेके जा क्योंकि तूने पे नहीं किया। सो बायर इज एट वेरी रिस्क, सो देयरफॉर बायर आल्सो डोंट प्रेफर टू गो एंड बाय अंडर एन हायर परचेज एग्रीमेंट, क्योंकि वो केस में उसका आरसी बुक में नाम तब आएगा 5 साल खत्म होने के बाद। ट्रक खरीद रहा हूं मैं अगर हायर परचेज में, तो मेरे नाम की आरसी बुक कब बनेगी? 5 साल बाद। लोन पे खरीदा तो पहले दिन हाइपोथिकेशन क्रिएट होगा, लेकिन आरसी बुक पहले दिन से मेरे नाम की। Am I clear with this? Sure. So this is the overview of a chapter. I hope you understood. That is not about starting with the chapter. Let's see the first question. This is what the professional courses are all about. At by end of the chapter, you will know north, east, south, west of the chapter. And I cannot restrict myself. अभी इसमें मैं GST पे लाया नहीं हूँ, GST पढ़ चुके हैं ना, उसको पूछूं मैं कि GST कब लगेगा? GST पता है ना, GST is being levied on supply. कब लगेगा? लगेगा कब? पहले दिन या आखिरी दिन? कब लगेगा GST? देखो पोजीशन पहले दिन है, ओनरशिप लास्ट दिन है, तो इस पे GST कब लगेगा? पढ़ लियो ना ग्रुप 2, कब लगेगा? It is not a sale, it is a supply which is subject to GST. Very first day. Supply includes sale, barter, exchange, lease, licensing, renting. याद है ना? Even disposal. Section 7, subsection 1, clause A. Clear? Fine, we'll stop here for the day because I know that you may feel कि बहुत है, अभी तो हमने शुरू किया और ये 2-3 दिन होता है, then you will start liking, okay, how to विचार युद्ध तो, that is why we have joined CM. Fine. Anyone has any doubt? Offline, online, anyone, any doubt relating to what we have discussed today? From tomorrow we are going to start with a practical question on this, though I have planned to start at least 1 or 2 practical questions, but I wish I should not start. No doubts? Fine then, take very good care of yourself. Bye bye. Bye sir.